Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is UGC Academy of English since 1998. Today in the morning we had a very great session regarding the survey and lot of knowledge my students acquired how to qualify UGC NET in the first attempt. And I have started the series in the morning daily at 11 a.m. where I'll be teaching the students of Pan India who are beginners, who have not much knowledge about how to qualify NET in English and what precautions they have to take, what they have to study, what they have to follow. And in this session today in the evening, I am going to teach those beginners, those students who understand the value of history of English literature. Because in the new syllabus, the unit starts with drama, poetry, fiction, non-fiction and like that. So the students understand that the history of English literature is not in the course. No, my dear students. History will always be an integral part to make you command your literature, to solve any questions and to get your progress in the viva or in the interview. Recently, one of my students who has been selected as assistant professor in Jharkhand, I had an interview with her. You can even see that interview in my YouTube channel. Her name is Jyoti Kumari. And she also told me that, sir, whatever you had taught me in the classes, in the content, I could be able to answer maximum of the questions. So once again, I welcome you here today for this great session. And I'm very much sure that students, new and old, whoever will join this place, whoever will join my classes will be benefited. So be communicative, be interactive and take a copy and pen so that you understand that how to begin and how I take my classes in my application, that is UGC Academy. You can download the application also. You can connect with us on the number given on the screen, and if any concern, anything to discuss or to take guidance or to join the classes, you may consult me. Thank you. Now, as you know that today's thumbnail is History of English Literature. So my dear students, as far as history of English literature is concerned, see, before starting, this is my application. You can see it and see from here we start. What you are able to see here, though you have been knowing UGC Academy and me, that I am not actually in a habit of making lot of PPTs, because I teach extempore without any PDF, without any PPTs. But I have tried to make 2-3 PPTs just for you. After that, I will be teaching extempore. So here you see that once we start the history part, we start with the Middle Ages. And the Middle Ages was a vast literary time period. बहुत बड़ा time था बच्चों ये Middle Ages. And where is that written Middle Ages? You can see here. See, the Middle Ages was a vast literary time period. Vast means very long, बहुत बड़ा literary period का समय था. And see what I have written here. It stretches from the collapse of the Roman Empire. ये कहाँ से stretch करता है? जब Roman Empire का collapse हुआ था 450 में, to the beginning of the Renaissance. और Renaissance कब शुरू हुआ बच्चों? ये देखिए 1485 तक. So यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सफर को ये देखिए. This is the gap. You can understand the gap. This gap is the Middle Ages. And if anybody asks you, what do you know about the Middle Ages? Many times questions come in the viva, in the interview, in many of the examinations, written or objective. So my classes will always give you an edge to write, to speak and to entertain the minutest details of the MCQs. Fine. So ये period कैसा था? It was a period of enormous मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा. Historical मतलब होता है साहित्यिक, social मतलब होता है सामाजिक, linguistic change मतलब language. Despite the continuity of the Roman Catholic Church, despite कि
रोमन कैथोलिक चर्च चल रहा था। ये देखिए लिखा है, इट वॉज अ पीरियड ऑफ इनॉर्मस हिस्टोरिकल सोशल लिंग्विस्टिक चेंजेस। ये डिस्पाइट, ये देखिए मैं इसको यहां पे कलर चेंज कर देता हूं, डिस्पाइट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड दिस पीरियड, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे ये पार्ट देखिएगा, ये पार्ट देखिएगा ध्यान से। इसका पीपीटी मैंने आपको इसलिए रेडी किया है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकें और ध्यान से। अंकित कुमार, वेलकम हियर, गुड इवनिंग स्निग्धा नायक। और मुझे बड़ा अच्छा लगा स्निग्धा, आप बहुत बहुत दिन बाद हमारे साथ लाइव हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ संपर्क में नहीं हैं। आई एम श्योर कि आप मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ रही होंगी, हमारे एप्लीकेशन पे हमारे कंटेंट को भी पढ़ रही होंगी, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बच्चों, दिस पीरियड is subdivided into 3 parts. Very important point to be noted here. See, I'll just tell you one thing. ये देखिए इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, this period is subdivided into 3 periods: Anglo-Saxon literature, AngloNorman literature, and Middle English literature. 1, 2 and 3. This is written in Roman language. गुड इवनिंग दीप्ति पांडे जी, कैसे हैं आप लोग? अपने बारे में जरूर बताइए कि सर हमने नेट क्वालिफाई किया है, या हमारा स्कोर इतना रहा या इतना नहीं रह गया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, कीप ऑन राइटिंग, मेक द क्लास कम्युनिकेटिव। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है जरूर पूछिए। स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गेट अप, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू थिंक वास्ट, व्हेन यू हैव टू थिंक अक्रॉस द बॉर्डर कि हमें क्वालिफाई करना है, हमें किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाई करके ओएसएन एकेडमी को, डॉक्टर अग्रवाल सर को प्राउड करना है। अभी आप देखिए, हाल में ही हमारे बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ज्वाइन किया, आईएएस क्वालिफाई किया, एक बच्ची ने डीएसएसएस भी क्वालिफाई किया, 47 स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। सो दे आर मेकिंग मी प्राउड, एंड दैट इज व्हाई आई हैव come with a lot more energy to make you also qualify. So these 3 periods are Anglo-Saxon, इसको रट लीजिए, सेकेंड इज Anglo-Norman रट लीजिए, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज यही तीनों आपको पढ़ना है, इसमें आपको कमांड करना है बच्चों। एंड ये जो वर्ड है ना मेडिवल, ये मेडिवल कहां से आया है? दिस वर्ड मेडिवल हैज कम फ्रॉम, ये देखिए द वर्ड मेडिवल कम्स फ्रॉम द लैटिन मीडियम, ये देखिए मिडिल एंड एवम, जिसको कहते हैं एज। फाइन, आई एम टेकिंग योर रिकॉर्डेड क्लासेस रेगुलरली। फाइन स्निग्धा, वेरी गुड। कभी कोई दिक्कत हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहां पे कोई पीपीटी नहीं है। ये क्या है? ये यही कर रहे हैं, ये लाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी, दिस इज अ ब्लैंक पेज। नाउ जो पीपीटी थी आपको मैंने दिखा दी कि यही 2 पेज की मैंने पीपीटी बनाई थी। नाउ आई विल टेल यू व्हाट you have to study after this. Now there are 2 trends in a scholarship if we are concerned with the middle ages. कुछ स्कॉलर्स का मानना है, कुछ स्कॉलर्स का व्यू है, ओपिनियन है, the middle ages as the beginning of ideas. Number 1, कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। सम स्कॉलर्स व्यू द मिडिल एज एज द बिगिनिंग ऑफ आइडियाज दैट कॉन्टिन्यूड डेवलपिंग इनटू द 16th century. कुछ अलग लोगों का मानना था
कि जो मिडिल एजेस हैं that were created by the 16th century writers who wanted to emphasize the originality of the contributions to literary culture. Now, if I talk about Old English, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको अच्छा लगे हमारी क्लास, जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड जस्ट like the button in case you like my classes. Old English अगर हम बात करें, so this Old English was spoken by the Germanic invaders of Britain. Germanic invaders of Britain. ठीक है, नाउ ये बहुत काम आपके आने वाला है. ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन, ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन. बच्चों एक बात है पूछना चाहेंगे आपसे, यहां आपको पीपीटी में ज्यादा अच्छा लगता है जो बना करके टीचर आते हैं, या एक्सटेम्पोर अच्छा लगता है जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको लिख करके डिजिटल पे, या पहले मैं आपको याद होगा मैं नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाता था, तो आपको ये अच्छा लगता है या पीपीटी से केवल रीड करना अच्छा लगता है? हमें एक बार सजेशन दें. ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन, दिस वॉज स्पोकन इन ब्रिटेन, दिस वॉज स्पोकन इन, यहां से देखिए कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. दिस वॉज स्पोकन इन ब्रिटेन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ, आपको डेट याद होगी बच्चों, दैट इज 1066. फाइन. नाउ पहला हो गया ओल्ड इंग्लिश, दूसरा हो गया ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मल. तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट? तीसरा है मिडिल इंग्लिश विच अपीयर्ड इन द 12th सेंचुरी. यहां लिखिए मिडिल इंग्लिश विच अपीयर्ड इन द 12th सेंचुरी. I can promise you students, if you are following OSN Academy, if you study with OSN Academy, you are sure to make your career. That is my promise. You have to just follow my guidance religiously and timely. और हमें बच्चों जरूर से बताएं कि अगर आपको पीपीटी ज्यादा पसंद है या ये फॉर्मूला ज्यादा पसंद है, तो आप लिखें कि सर पीपीटी या बोर्ड में जो लिख रहा हूं, राइटिंग या इन राइटिंग, जरूर लिखें. नाउ मिडिल इंग्लिश विच अपीयर्ड इन द 12th सेंचुरी, इसने क्या किया स्टूडेंट? जब ये आया, इस डिस्प्लेस द फ्रेंच, इसने फ्रेंच को डिस्प्लेस कर दिया एज ब्रिटेन्स ऑफिशियल लैंग्वेज. पहले क्या था? पहले ब्रिटेन की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी. तो जब मिडिल इंग्लिश पीरियड अपीयर हुआ 12th सेंचुरी में, so it displaced the British French as British official language by the end of the 14th century. 14वीं शताब्दी के अंत तक, जब याद होगा चौसर की डेथ हुई थी, इसीलिए आपको याद हो चौसर में 3 पीरियड था, एक था फ्रेंच, एक था इटालियन और एक था इंग्लिश. दिस वॉज द रीजन. फाइन. सो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे ले लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कम्युनिकेट करें और बताएं कि आपको पीपीटी ज्यादा पसंद है या राइटिंग क्लास ज्यादा पसंद है बच्चों. क्योंकि हमारी जो क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं उसमें मैं बोर्ड पे लिखता हूं. आई राइट ऑन द बोर्ड एंड आई स्पीक डायरेक्टली. सो देयर इज नो पीपीटी एज सच बिकॉज आई फील लाइक टीचिंग लाइक दिस एक्सटेम्पोर विदाउट एनी पीडीएफ, विदाउट एनी रीडिंग ऑफ एनी पीपीटी. सो हाउ मच यू अग्री टू मी, आई वुड लाइक टू नो. Now, I am cleaning this now. चलिए नेक्स्ट आते हैं. मोनेस्ट्रीज एंड अदर रिलीजियस हाउसेस. मोनेस्ट्रीज तो आप जानते होंगे,
और बहुत सारे और रिलीजियस हाउसेस, धार्मिक घरें या मंदिर मस्जिद जिसको कहते हैं, वेयर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बुक्स। सबसे ज्यादा बुक्स को प्रोड्यूस करने में किसने मदद किया? मोनेस्ट्रीज एंड रिलीजियस हाउसेस। ये देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, मोनेस्ट्रीज एंड रिलीजियस हाउसेस, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? दे वेर प्रोड्यूसर्स ऑफ बुक्स, प्रोड्यूस्ड बुक्स, ऐसे समझिए, प्रोड्यूस बुक्स, until they were dissolved by किंग हेनरी एट इन 1530। जब तक कि उसको किंग हेनरी एट ने डिसॉल्व नहीं कर दिया 1530 के आसपास। फाइन, यहां तक आपको समझ में आ गया? बच्चों, आप लोग हमें मैसेज करके ये बता ही नहीं रहे हैं कि आपको पीपीटी पसंद है या राइटिंग पसंद है। ये जो रिलीजियस हाउसेस थे स्टूडेंट्स, दीज रिलीजियस हाउसेस की अगर हम बात करें, दे वेर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस के समय में ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स थे, खरीदने वाले थे। नोबल्स, दे बिगैन परचेजिंग, दे बिगैन कमीशनिंग द बुक्स ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मल पीरियड। बाद में जब 14वीं शताब्दी आई, जो अर्बन लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, दे ऑल्सो एंटर्ड द बुक मार्केट, वो भी किताबों की मार्केट के अंदर घुस गए। फाइन, तो यहां तक ये क्लियर समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए आते हैं जो मेन मुद्दा हम पढ़ाते हैं, दैट इज, यहां तक देखिए आपका बेस बन गया। अब बेस बनने के बाद हम लोग नंबर 1 पॉइंट पे शुरू करते हैं, एंड दैट इज एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, हाउ मेनी ऑफ यू, सिंगला ने कहा है कि दिस इज द बेस्ट वे आई फील। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट। और बच्चे हमें बताएं, एंग्लो सैक्सन पीरियड में 3 थे। पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या था? पहला था द एंजल्स, द ANGLES। नंबर 2 पे क्या था स्टूडेंट्स? द सैक्सन्स, द सैक्सन्स। और नंबर 3 पे था द ज्यूट्स। एंड दे वेर रिलेटेड, दीज वर, ये 3 लोग थे, ये 3 थे जो रिलेटेड थे जर्मैनिक ट्राइब से। दीज वेर 3 related to the Germanic tribes who invaded the Roman province। रोमन प्रोविंस को किसने इन्वेड किया था? जर्मैनिक ट्राइब्स ने। एंड जिसने रोमन प्रोविंस को इन्वेड किया था, दे वेर जर्मैनिक ट्राइब्स, अराउंड द ईयर 450 आफ्टर द रोमन्स विड्रू, जब रोमन्स ने विड्रू कर लिया था। और जो नाम इंग्लिश आया है, द नेम इंग्लिश, जिसको कहते हैं डिराइव्स फ्रॉम द एंगल्स। ये देखिए, यहां से इंग्लिश वर्ड आया है, इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंगल्स। फाइन, यहां तक एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंक्लूड वन मोर थिंग हियर, दैट वैल्यूज ऑफ एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोइट्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज ऑफ, जो पॉइंट हम लिखाएं बच्चों, जो हम पढ़ाएं, वो समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट टू मिस। दैट इज वाई स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर कंट्री, व्हेन दे आर स्टडिंग इन माई क्लासेस, इन माई एप्लीकेशन, they always call me and WhatsApp me and say that yes sir, the kind of quantity, the kind of quality which I get in my bilingual batches or in my pure English batches, they are actually indispensable for your upliftment as a scholar of English literature. So here, that is why whatever I am teaching, that is the same style, same content level which I teach in my paid classes.
values of Anglo-Saxon heroic poetry. Anglo-Saxon heroic poetry. Values of Anglo-Saxon heroic poetry include. अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसका कोई उत्तर दे सकता है, क्या है, what are the values of the Anglo-Saxon heroic poetry? What they include? They include kinship relations rather than geography from the idea of a nation. Generosity is expected on the part of the Lord, that is, who leads men in war and rewards them with a share of the booty. Now, Old English poetry की अगर हम बात करें, Old English poetry is often elegiac. Old English poetry is often elegiac. ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने का है आपको. गुड इवनिंग. जस्सू हरियाणवी जी ने कहा है कि राइटिंग इज गुड. और भी बच्चे हमें बताएं, ठीक है. Old English poetry is often elegiac. Why? It often combines Christian texts with Germanic heroic values. And Old English poetry uses a very special formal poetic vocabulary, including devices like synecdoche, devices like metonymy, like this. So you have to have the knowledge of this kind of level if you have to command your literature for qualifying an examination. Now, ये हो गया एंग्लो सैक्सन लिटरेचर. नंबर 2 पॉइंट पे बच्चों आता है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आता है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर. एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर. Always remember, students, once you study directly, it will not give you that level of efficiency. If you have to be a very good scholar to qualify any examination, always study and follow as I am telling you. Now, the Normans का मतलब क्या होता है students? The Normans. कोई हमें बता पाएगा? A contraction of Norsemen. ये देखिए, a contraction of Norsemen. A contraction of Norsemen. They took possession of England in 1066. यही है ना टाइम. Now what happened, that the ruling class in England during this period, जो रूल कर रहा था, जो लोग रूल कर रहे थे इस समय, they spoke old French. Linguistic, cultural changes in Britain, वो बढ़ गया. It was accelerated by Norman conquest in 1066, when words from the French began to enter the English vocabulary. So now there are 4 main languages. ध्यान रखिएगा, 4 main languages circulated in England during the Anglo-Norman period. Shivani Tiwari, Ravi Pandey, good evening Shivani. Norman, yes. Ravi Pandey, yes. Norman 1066. अब देखिए, यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं. बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. 4 मेन लैंग्वेजेस. देखिए मैं लिख रहा हूं 4 मेन, इसको नोट कर लीजिए. 4 मेन लैंग्वेजेस सर्कुलेटेड इन इंग्लैंड, सर्कुलेटेड in England during the Anglo-Norman period. During the Anglo-Norman
पीरियड। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये 4 हो गया, ये देखिए मैं लाल कर दे रहा हूं, लैंग्वेजेस को कर दे रहा हूं, ये देखिए, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये देखिए, so that you don't forget it. So 4 main languages. Now you need to discuss, we need to discuss here what are those. Number A, कोई बताएगा हमें ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन? ओल्ड फ्रेंच और ध्यान रखिएगा, ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मल। ये देखिए, ये पहला हो गया। बरखा ने लिखा है फ्रेंच, एंग्लो सैक्सन, लैटिन। करेक्ट, ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन। सेकेंड इज लैटिन, नंबर बी, LATIN। लैटिन में आगे लिख दीजिए द लैंग्वेज ऑफ क्लेरिक्स एंड द लर्नेड। द लैंग्वेज ऑफ क्लेरिक्स एंड द, इतना माइन्यूट अगर आपको पता रहेगा तो कभी जिंदगी में आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। 3 इज ओल्ड, 3 is Old English. And what is the fourth? What is the fourth? Different branches of the Celtic language group. Different branches of the Celtic, different branches of the Celtic language group. देखिए, अब इसको जो है आप देखिएगा, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। करेक्ट? एनी क्वेश्चंस? चंद्रकांत, गुड इवनिंग चंद्रकांत जी, कैसे हैं आप? I like the way of teaching sir. Thank you चंद्रकांत जी, थैंक यू। और जो भी पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, न्यू एंड ओल्ड, I would advise them to subscribe the channel, to press the bell icon, and if you are liking my class, put a like button, that would be grateful for you. Now, यहाँ तक हो गया। हमें ये बताएं बच्चों कि ऐसे आपने कभी यूनिवर्सिटी में, अपनी क्लासेस में, अपने डिग्री कॉलेज में, या अपनी पढ़ाई में कभी ऐसी पढ़ाई की है आपने बच्चों? अगर कोई आपसे शुरुआत से पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? नाउ कैन यू टेल, कैन यू अंडरस्टैंड दैट दिस शुड बी द राइट वे, द राइट अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री पार्ट, एंड फॉर अ बेसिक बिगिनर और एनी एग्जामिनेशन, चाहे आपको TGT करना हो, PGT करना हो, कोई भी एग्जाम, दिस इज द वे द अप्रोच शुड बी. That is why I always tell my students, whoever knows an academy, that believe me, you will be a versatile genius if you follow this academy. Now, again, we